ہاں بھائی اور پھر بھائی سر آگے آئے آگے آ گیا خالی تو سمجھے سو بڑے بہت سے تو ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آج کا تیرا اجلاس ہے مجھے وہ بلا دی تربیت والے 50 بار کونسل ہے تاکہ ہم اس سے سارے دوست کہتے تھے انہیں کاروائی کا آغاز کرنے پہلے تلاوت کلام پاک اور تلاوت کیا ہم اقبال صاحب کی تلاوت کلام لائٹ ڈیم ہے سر جیسے فوٹو ایک طرح سے فوٹو مانگے ٹھیک ہے فوٹو مانگ سکتے دونوں کا ویڈیو بنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سینئر ممبر ہمارے آواز آواز ریکارڈ حسن صاحب سینئر ممبر محمد اقبال صاحب ناصر صاحب سیکٹری بات اورنگزیب چھوٹی صاحب اور مجھے آج یہ بڑی خوشی ہے کہ میں اتنے سارے رتبہ صاحبان کو اپنے اس ٹینیور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وکالت کا لائسنس ملا ہے آپ ہماری بار کا ہماری باڈی کا ایک حصہ بن گئے آپ اپنے لیے تالی کی جائے اور جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ تمام کے چہروں سے اور میں آپ لوگوں کو سب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہماری بار میں خوبصورت اضافہ ہے تمام ہمارے نئے آنے والے دوست پڑھے لکھے دوست پڑھنے لکھنے والے دوست پیورلی اس پروفیشن سے ظاہر ہونے والے اس پروفیشن میں آنے والے دوست ہمیں آپ جیسے ہونہار کمپیٹنٹ دوستوں کی بڑی ضرورت ہے بات کو اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے پنجاب بار کونسل کی ہدایت سے اسی سوچ کے تحت منعقد کیا گیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی پوری کمیونٹی ڈسٹرکٹ کی باہر کی کمیونٹی آپ کی صلاحیتوں سے بھرپور کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کام ہے ایک یہ پروفیشنل ڈگری ہے پروفیشنل ڈگری میں اسکل چاہیے اور اسکل جہاں پڑھنے سے آپ کو آئے گی وہاں ایک اگر تجربہ کار آپ کو ایک اساتذہ کی آپ موجود ہو جائے رہنمائی موجود ہو جائے تو اس میں دن دگنی رات چگنی آپ اسے ترقی کر سکتے ہیں اس جو پروگرام ہے اس پینل کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ سول کے ہیں یا کرمنل کے ہیں یا دوسرے ایتھکس کے حوالے سے جو بھی وکلا صاحبان ہم نے یہاں ان سے ریکویسٹ کی ہے ان سے بہت مشہور وکیل ہیں بہت اچھے وکیل ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مخلص وکیل ہیں جن لوگوں نے ہم نے اس پینل میں شامل کیا ہے جو آپ لوگوں کو ٹائم دیں گے اور اس تربیت میں آپ کا ساتھ دیں گے ان میں سب سے پہلے ہمارے بار کے آج کا جو لیکچر ہے وہ شریف محمد رفیع 50 صاحب دیں گے تو اسی طرح آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سے ایک بڑا وکیل ایک سے بڑے اچھا وکیل جو اس پروفیشن کے ساتھ پولیس ہے پریکٹسنگ دائر ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو پوری طریقے سے گائیڈ کریں گے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں یہ جو آپ نے 5 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے وہ ایک طرف ہوگا جو 5 منٹ آپ کو رفیع صاحب بتائیں گے یہ مجید خان صاحب بتائیں گے وہ میں سنتا ہوں 5 سال سے حاوی ہوگا وہ اتنا تجربہ ان کے پاس ہے تو آپ کو تمام دوستوں کو سنجیدگی سے لیں اس پروگرام
को कामयाब बनाएं। ये प्रोग्राम आपके लिए, इसमें अगर कोई किसी किस्म की आपको मुश्किलात का सामना है, कोई चीज़ की मज़ीद इसमें बेहतरी के लिए कोई गुंजाइश मौजूद है, तो वो आप हमारे से रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे आपको। और ये प्रोग्राम आपको पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा, आपकी साहित्यों में ये बात करते बहुत शुक्रिया आप तमाम की शिरकत का बेहद शुक्रिया। मुझे इस आपके लिए बड़ा आदर महसूस हो रहा है कि हम तो आपको इस पार्क की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पार्क की तरफ से आपको वेलकम भी कह रहा हूँ और आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शुक्रिया जमाल भाई। हूँ मैं देसा सीनियर मेंबर बार अब्दुल मजीद खान पठान साहब को मैं इसी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इस साथियों को मुतलाक में ये आम मुद्दे नहीं है तो कोई कारखाने और कुछ बल्कि इसको ग्लोबल लार्ज और हम ये तो रखते हैं ये नहीं रखते कि वही मेयार जो कि सबसे लायक है वो बाकी नहीं। ये बात ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि पंजाब बात की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बार ने शुरू किया है। तो इसमें मुख्तलिफ वकला जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, मुख्तलिफ मकामी में, मुख्तलिफ शोबे में माहिर हैं, उनको यहाँ पर जो आपसे मुखातिब होंगे, अपने से बात करेंगे, कानून की बारीकियाँ बताएंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको कभी नहीं लेंगे, आप इसको सीरियस लेंगे, क्योंकि जितना मेरे भाई दिमाग फरमा रहे थे कि हमने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, इसको इज्जत मकाम देना है, जो कि मकाम उसका हक है। भाई हम 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे दौर में 3 साल की बात हुई, अब 5 साल लगते हैं, 5 साल हो जाते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर शायद 5 साल लगाता है उनके बाद, कम अज कम FA या BA के बाद हम 5 साल लगाते हैं। और हम स्वेटी करीम हैं, हमें स्वेटी का करीम अगर स्वेटी कहा गया है बुकरा को, हम स्वेटी करीम है। हमने अपनी राह मुतय्यन करनी है, हमने हुकूमत की रहनुमाई करनी है, हमने इंतजामिया की रहनुमाई करनी है, और सबसे बढ़कर ये हमने उन मसाकीन की जो कि लुटे फुटे आते हैं, मारे डाले आते हैं, जिनको जुर्म जिन पर हुआ होता है, लेकिन माशरे में क्या होता है, उन पर जो बासा लोग हैं उनको पर क्या क्या जुर्म करते हैं, उनकी हमने रहनुमाई करनी है, उनकी हमने दस्तगीरी करनी है, उनकी हमने जांच देनी है। भाइयों अजीजों, ये आप देख लें, आप उसको आप अच्छी तरह समझ लें कि हम किराए के मुलाजिम नहीं हैं कि चंद तक के लेकर हम किसी की वकालत करते हैं, बल्कि हम अपने मियार को कायम रखते हैं और मियार को कायम हमें रखना चाहिए। और ये हमें बार करना चाहिए अदालत को। अदालत ये सोचे कि मेरे पास जो मेरे सामने जो वकील खड़ा हुआ है उसका एक मियार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी बार के वकला बहुत अच्छे वकला हैं, और मैं समझता हूँ किसी बड़ी बात मुल्तान को ले लें, अब लाहौर को ले लें, अब इस्लामाबाद को ले लें, कम नहीं है। बाकी बाकी की बात होती है, हम छोटे इलाकों में काम करते हैं, उनको मौका मिला है बड़े इलाकों में काम करते हैं, लेकिन किसी से सलाहियत में, कानून की हवाले से, मुशावरत में हम कम नहीं है। और हमारे पास दीन
صلاحیت والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں. میں وقت نہیں دیتا زیادہ بات کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے. میں آپ سے ایک بات محنت سے کام یہی کرنا ہے کہ آپ محنت کریں گے ان شاء اللہ آپ کو پوری مل پائے. بے شک ٹھیک ہے کہ ہمارا شعبہ جو ہے پروفیشن ہے یہ محنت مانگتا ہے، یہ تازہ علم مانگتا ہے، قوانین تازہ مانگتا ہے. میں ایک مثال کہ میں ایک اپیل میں پیش ہوا. اپیل یہ تھی کہ مرزائی نے ایک مسلمان کی وراثت ہے. مجھے یہ بات نہیں بنتا کہ مسلمان کی وراثت ہے، قانون یہ ہے زندگی یہ کہتی ہے. تو لوور کورٹ سے ان کا دعویٰ خارج ہوا. جیسے میں بتا نہیں کر کسی بنیاد پر کسی کا بنیاد پر میں اپیل نہ دے پاؤں. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جج صاحب نیچے درد تھے وہ بند رہتے کہ ان پہ ایسی بات کہیں کہ وہ قانون سے ہٹ کر ہو. یہ قانون میں کتابوں میں ہر چیز موجود ہے، کہی جا سکتی ہے مثال کے لیے. تو میں نے اپنی اس ہستی سے اس حیثیت سے بہتر بات کی. وہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ غلط بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، جو کافر ہے یا مدعی ہے یا نان مسلم ہے. تو میں نے ان کو کہا جیسے بات یہ کہ ہم تو یہاں ملے کی بات کریں، رب کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو نہیں بخشا. مولا میں نے دیا تھا نور اسلام. جب طوفان آیا نا اور وہ عالمگیر طوفان تھا کسی کے اور اللہ کی طرف سے تھا. وہ طوفان کسی انسان کے اللہ کی طرف سے تھا اور اس نے سوائے مسلمانوں کے جو اس کشتی میں آ گئے تھے کسی نے نہیں بچانا تھا. وہ حضرت نور علیہ السلام کا بیٹا جو ان کا سلبی تھا لیکن ان کے نسخے تھا وہ دوسری سائڈ پر تھا. وہ اسلام نہیں لایا تھا، وہ مسلمان نہیں بنا ہوا تھا. تو اس کو حضرت نور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھی بیٹا اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچنے والا. پہاڑ پر میں چل جاؤں گا، وہ مجھے پناہ دے دے گا. تو پھر جو اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. حالانکہ وہ تو بیٹا تھا ان کا، اہل سے نہیں. مطلب یہ تھا کہ بھی یہ تیرا وارث نہیں ہے. خیر میں نے یہ تفصیل بتائی کے ساتھ کیا ابھی دیکھیے ہم نے کرنا ہے لا سے ہم نے پیدا کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے. ضروری کہ ہم کتابوں پر محمود ہیں، ہر جگہ بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کون پڑھا سکتے ہیں حدیث کا کون نہیں کی شکل میں ہر قسم کا موجود ہے. ہم اس سے پیدا ہوتا ہے. بھائیوں محنت کریں، اس سے آپ پیدا اٹھائیں. ان شاء اللہ آپ کو پروفیشن کی محنت تربیت ملے گی، فائدہ ہوگا اور اصل میں اللہ تعالیٰ نے سارے دوست نام مشہور ہیں کہ گسائے آج سیول کے سارے مشہور قانوندان اور سیول کے بادشاہ سارے قوم قابل احترام سابق صدر چودھری محمد رفیع 50 ہے اور کو سیول کے دہشت سے سارے طور پر شروع جو پیسوں اور بھی قانون کی سیول دے جتنا بھی ہے طریقے کا روشنی پیسے اور کچھ اللہ تعالیٰ سلام. السلام علیکم اور بھی جو ہے جب سے پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور ٹھیک ہے یہ زندگی تمام سیکھنے اور سکھانے کا ہی ایک عمل ہے.
इस तरीके से थोड़ा सा एक फिक्र मेरे जहन में आया हुआ था और वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की है, जिस तरह खान साहब ने बताया कि शरिया इज सुप्रीम लॉ, ये जहन में रखें। शरिया, हम मुसलमान हैं, मुसलमान की हैसियत से खुद सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है कि शरीयत जो है सब कवानीन से बढ़कर सुप्रीम लॉ जो है वो, इसके ऊपर बाकायदा साइटेशन है, जिसको उसको जरूरत पड़ेगी तो फिर वो मेरे पास मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी आया हुआ है कि जो है ना कोई भी लॉ वो प्रे करके जज़ाकल्लाह। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर मेरी हेल्प होगी, जैसे आइन की उसमें पेपर में जैसे लिख दिया गया है कि कोई कानून जो है इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा, तो इस तरीके से अगरचे हमारे फैसले आ चुके हैं कि फलां कानून सूद का निज़ाम है, फलां निज़ाम है, ये अहली कानून की दफ़ा 4 का है, ये सारे इस किस्म के जो हैं ये खिलाफ शरिया हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट ने उनके फैसले सादिर कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमतें अपील की हैं, और मुस्लिम लीग की हुकूमत हो या PP की हो, उन्होंने अपील दायर की, अपील दायर करने के बाद वो सूद का निज़ाम बदस्तूर जारी सारी है, जो हमारे बेसिक जो प्रिंसिपल है और क्या कहते हैं मुआशी निज़ाम का बेसिक इकाई है, उसके अगेंस्ट हम चल रहे हैं। और बल्कि सूद के बारे में तो छोटे से छोटा जो गुनाह है वो के साथ क्या कहते हैं बुराई करने के जो करार दिया वीडियो बना आ रहा हूँ ये शरीयत का जो था वो उस बारे से हम आप थोड़ा सा आए इसी शरीयत के लिहाज से हम अपने आप को जरा देखें। इंसान मैं आ रहा हूँ सर, दे देता हूँ सर। इस इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है जिंदा रहने की और हरकत करने के लिए। इसी तरीके से मुआशरे को चलाने के लिए, उसमें अमन सलामती पैदा करने के लिए कवानीन की और कुछ कायदे कवायद की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होंगे कोई मुआशरा कायम दायम नहीं कर सकता। अगर ये कवायद वापस नहीं होंगे तो जड़ टूट पड़ेगी। अगर हम अपने इस्लामी ज़िंदगी को देखें तो उसके अंदर भी शुरू ही से पाबंद कर दिया गया इंसान को कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना। पुराने पाक को खा के देखें तो उसमें भी नहीं और मुनकर तमाम मौजूद हैं कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए हलाल हैं और ये हराम है, इनके नज़दीक नहीं जाना और इनसे इज्तनाब करना है और ये आपने अडॉप्ट करना है। इवन हमारे जद्द अमजद के ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को, उनको जब अल्लाह मियाँ ने पैदा किया और उनके भी कदर ये लगाई गई कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। वो सूरत आराफ की 25, 26 और 29 में आया तो फिर वो दुआ है कि उसके अंदर अल्फाज हैं कि शैतान ने उनको बहका दिया, फुसला दिया, यानी उनके अपने वाली तो बल्कि वो शैतान के उसमें कहने में, और शैतान ने वहाँ पे एक लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया कि लालच ये दिया कि तुम इसमें हमेशगी ज़िंदगी तुम्हें मिल जाएगी और ये नेमतें तुम्हारे लिए दवामी हो जाएगी। ये लालच इस इंसान के जब आ गया तो उन्होंने वो नाफरमानी कर बैठे। लफ्ज़ हम अमूमन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हज़रत हव्वा ने जो है ना जो पहले वो पहल की और ये वो दाना खाया या जो कुछ भी था। लफ्ज़ वहाँ पे है काला, काफल इफ्का लाम अलिफ्का, उन दोनों ने मतलब है वो नाफरमानी कर बैठे। एक ने नहीं कि बिला वजह हमारी दादी अम्मा हव्वा को जो है ना वो कहें पूरे इल्ज़ाम ठहराएँ। और फिर उसके बाद उनकी वो जो लिबास था वो उतर गया और वो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी
मांगी और ये अल्फाज भी अल्लाह ताला ही नहीं उनको सिखाए थे कि अल्लाह ताला हमने अपने इस्लाम पर जुल्म किया है और तो हमें वक्त वरना हम खसारा पाने वालों को छोड़ देंगे। अगर हम ऐसे मुसलमान अपने जहन में रखें कि टू इट इज़ ह्यूमन, इंसान खताकार है, हर में गलती होती है, वैसे वकील भी और सबसे पहले वैसे मुसलमान हम अपनी कोताहियों पर, लफ्ज़ों पर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते रहना चाहिए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरशाद इस अंदाज से है कि मैं दिन में 70 मरतबा एक आता है, रिवायत में एक में है 100 दफ़ा जो है ना इस्तग़फ़ार करता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, इनको खता का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये ट्रेनिंग और ये बातें हमारे लिए आप फरमा दें। अब थोड़ा सा आगे चलें तो यही हमारा कल्चर जो है इस्लामी, पहले सबसे पहले इस्लामी कल्चर जो कायम हुआ है, ये भी हमारे उन फैसलों पर जो हमारे सामने मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले मौजूद हैं, किताबी शक्ल के अंदर मौजूद आए हुए हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले हों, हज़रत उमर के फैसले हों रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, इनकी अलग किताबी शक्ल में आ चुके। बल्कि एक मैं तो PhD नो मुस्लिम था, डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी, इंडिया का था, बच्चा था, मैट्रिक की जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो उसने स्टडी की, इस्लाम को स्टडी किया, मुसलमान हो गया और वो मदीना यूनिवर्सिटी से फिर अल अज़हर यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहाँ से उसने PhD सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसले किए उस पर कि ये फैसले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फरमाए हैं, तो उस पर वो उसको PhD की डिग्री जो है वो मिली। इससे पहले किताबी शक्ल में अरबी में तो एक अंदलसी थे, उनको साथ थी, लेकिन बड़े सगीर में से ये किताब उन्होंने अरबी में लिखी, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद मदीना यूनिवर्सिटी गए और फिर वहाँ से अल अज़हर हुआ, उसमें उनको वो डिग्री और वो अक़ज़ियातुर रसूल के नाम से किताब भी शक्ल में अब आपकी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट पार्क की लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके बाद अक़ज़ियातुर रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले। वैसे हमारे बाद में भी आने वाले खिलाफत राशिदा के अलावा कोई फैसले, क्योंकि वो कितने मुरबा मील 20 लाख मुरबा मील में थी हुकूमत हज़रत उमर की, या 2 लाख कितनी थी, वो 22 लाख, इतने वहाँ पे जो फैसले होते थे उनको भी किताबी शक्ल में दिया गया। वो हमारे इमाम जो मोहम्मद बिन इस्माइल बिन क्या है ये इमाम बुखारी जिसे कहते हैं, वो उन्होंने मतलब प्रोडक्ट किया, लेकिन वो अभी तक उनका तर्जुमा जो है वो मार्केट में नहीं आया। ये तर्जुमा जो है मारिफ इस्लामी ने जो है वो किया है, जो हमारे पास है। ये है डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान आज़मी शायद वो आजमगढ़ एक इलाका शायद उससे आदमी हैं या किसी निस्बत से उन्होंने किया। बहरहाल ये हमारे पास इनके जो है ना हैसियत मुसलमान, हमारे पास ये फैसले और ये नज़ायत मौजूद हैं। अब हमारे ये तरमीम हुई है एविडेंस एक्ट में, जिसे कानून शहादत किया गया है, इसमें भी अगर आप उठा कर देखें तो एक उसमें था कि इंटरेस्टेड विटनेस जो अमूमन इस्तेमाल होता है कि ये जानेदार गवाह है, ये भाई है, ये फलां है, ये फलां है। सबसे बड़ी मिसाल उस दौर में काजी साहब के पास एक फैसला आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो एक यहूदी के खिलाफ था और वो एक जिला के को जो पहनते हैं तंग में दिफाई उसके लिहाज से के तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया कि आप अपना सबूत लाएं। उन्होंने कहा मेरा बेटा है हुसैन, उन्होंने कहा नहीं, बेटे की शहादत काबिल नहीं है।
उन्हें कहा ये मेरा गुलाम कंबर है, उन्हें कहा ये भी काबिल कबूल नहीं, और उनके पास कोई शहादत थी नहीं। उन्हें कहा नहीं, ये आपके पास क्योंकि शहादत ये जो आप बयान कर रहे हैं ये आपके जानबदार हैं, इंटरेस्टेड विटनेस हैं, लिहाजा ये नाकाबिल कबूल, और फैसला ये हो गया, तो सादर हो गया कि इतन वो बिगाड़ की हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी वक्त वो यहूदी है मुसलमान हो गया कि ये फैसला जो है ये बहरहाल इन्होंने दुरुस्त फरमाया है करके इसके साथ शहादत, कानून शहादत के साथ। ये अब हमारा 1882 में अगर पहले कानून में एविडेंस एक्ट होता था, अब वो कानून शहादत के अंदर इसमें खराबी वगैरह हुई है और ये इस्लाम की तरफ से तो लाया गया। इस तरीके से अगर आप ये मुताजा करते रहेंगे इस्लामी उसका कल्चर का भी, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ से, जिस पर ये बार काउंसिल ने कदम लगाई है कि जो भी 2022 और 23 के जो स्टूडेंट हैं या नए वोकल हजरात बने हैं, ये बाकायदा जो है ना ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग क्या लेनी है, आपस में एक दूसरे के साथ गप लगाएं और अपना हाल हिला करें, और फिर इसकी रिपोर्ट हमारे पास भेजें, ताकि ये हमारे लिए एक फ़ोटो उभर के भेजें कि इनकी हाज़िरी भी लाजमी हो कि ये वाकई इन्होंने ये लेक्चर जो हैं ये अटेंड किए हैं या नहीं किए। वैसे तो ज़ुबानी ना भी हो तो हम लिख के देने के लिए तैयार है कि हाँ ये सारे दोस्त आए हुए जो भी सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा वो क्या कहते हैं जी वीडियो उन्होंने कहा कि ये सबूत के साथ भेजो। बहरहाल सर अभी आपने वो बात की ना इंटरेस्टेड विटनेस की, और उस टाइम तो खैर इतनी सहूलियात नहीं थी, अभी तो आगे मतलब कोऑपरेशन भी तो है, अगर कोऑपरेट हो रहा है कि इंटरेस्टेड फिर उसकी वैल्यू है कि नहीं है। हाँ, वो हर केस की अपनी अपनी होती है कि यहाँ पे एविडेंस लेना घर का ही वो हुआ है, वहाँ पे तो जो है ना अगर कोई हादसा होता है तो वो घर वाले ही मतलब है उसमें वो दे सकते हैं, बाकी बाहर का तो वो नहीं होगा। फिर उस हालात के वो गवाह था वहाँ पे पहुँचना, बाकी उसका वो केस उसका हर केस की अपनी अपनी ये हम कहेंगे नहीं कि हर के वो जो है ना एविडेंस वो काबिल होगी हालात में, ये बात सिचुएशन डिपेंड करता है। इंटरेस्ट इजाज़त है। सिचुएशन जो है ना हर केस की अपनी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो लॉ है इसमें एक तो हमें तफसील कर दिया है कि एक सिविल लॉ है, दूसरा क्रिमिनल, और एक वो फैमिली लॉ को भी थोड़ा सा साथ लगा दिया है और उसको एक अलग ग्रुप के अंदाज में बना दिया गया है। बहरहाल सिविल जो है, सिविल लॉ में आप सब अप्रेंटिसशिप की है, इसके अंदर जो गैर फौजदारी जो है समझे उनसे हट के बाकी सारा सिविल है। इसमें बहुत से एक्ट जो हैं वो आ जाती है, आपके पास वो सिलेबस आया होगा, उसमें पहले पहले वो उसका ये डार्ट है, कंट्रैक्ट एक्ट है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है, ये सारे के सारे इनके साथ जुड़ी दावे हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये सिविल की मद में आ जाते हैं। और जो फौजदारी दूसरा है जो क्या कहते हैं जी वो क्रिमिनल के खाते में, इसको हम यूँ कह लें, सिविल को हम मुहज़्ज़िब कह लें या जो भी अल्फाज दे लें कि गैर फौजदारी और फौजदारी, इस अंदाज में हम इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं। इसके लिए जो डील करती है हमें सिविल केसेस के लिए वो है सिविल प्रोसीजर कोड, और फौजदारी साइड पे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके तरीक़ेकार क्या होता है, अब इसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमें स्टार्ट में कि ये हमारे कौन कौन से केसेस जो हैं किस तरीके से वो कहाँ दायर होंगे, किस तरीके और इसकी समाप्त कैसे होगी, इसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो आज हम इसी सिविल प्रोसीजर कोड का वो स्टार्ट कर लेते हैं, या ये अलग अलग कवानीन का कहें उससे कर लेते हैं। अदरवाइज पहले तो हो जाता है जूरिसडिक्शन के बारे में
section 2 के suits in general equal to try all civil suits unless barred. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सफिशिएंट लॉ जो है ना वो आड़े आ जाता है, जैसे कंसोलिडेशन है का कानून है तो सिविल को कह दिया कि भैया आपने नहीं सुनना, रेवेन्यू पे लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई केस है बेदखली मुजाहरे की है बना है तो ये उस पर कदम लगा दी, ये आपने नहीं सुना। सफिशिएंट लॉ ये छोटे लॉ जो जितने भी हैं उनके बाद अगर वजाहत आ गई है तो वो तो सिविल नहीं सुनेंगे। अदरवाइज जहाँ भी कोई रॉन्ग है, जहाँ पे कोई राइट इंजर्ड हो रहा है किसी का तो वहाँ पे क्या है वो सिविल कोर्ट को अख्तियार है। स्टार्ट ये नहीं कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास या हाई कोर्ट को जाए, पहले निचली अदालत से सीनियर सिविल जज या सिविल जज जो भी है लोअर फोरम जो लोअर फोरम है जज़ाकल्लाह, वहाँ से हमने ये स्टार्ट लेना है। फिर उसकी जो तरीक़ेकार प्लीडिंग का जो हम वो पेश करते हैं हमें लिख के, प्लीडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई और प्लेट भी आ गई। प्लेट जब मुद्दई दावा करता है अर्जी दावा, अब अर्जी दावा में आप पढ़ चुके हैं, ऊपर क्या लिखेंगे अदालत का नाम जो ये सीनियर सिविल जज या सिविल जज जहाँ पे भी है उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद में पार्टी नेम आएगा, पार्टी नेम में क्या होगा, नाम, वजीयत, एड्रेस, और आजकल वजीर उन्होंने कर दिया कि शनाख्ती कार्ड भी लिखो और मोबाइल नंबर भी लिखो। ये बाद में जो चिट्ठियाँ हैं CBC में नहीं बल्कि ये बाद में जो करेक्शन आई है ये उसके अंदर ये पूरी है। और इसके बाद उसके अगेंस्ट डिफेंडेंट का भी इसी तरीके से नाम, वजीयत, ज़ात, रेजिडेंस, मुकम्मल एड्रेस जिस पे वो डाल दिया लिफाफा रजिस्ट्री कर लें सम्मान नोटिस का तो वो। उसके बाद में फिर उसका दावे का एक मुस्तर हेड लिखते हैं और उसके बाद बॉडी ऑफ लैंड उसमें अपने अपने ग्राउंड्स जो हैं वो लिखे जाते हैं और साथ में उसकी वैल्यूएशन दावे की वो भी लिखी जाती है कि इतनी मालियत का इतने का, और ब्रीफ फैक्ट इसमें एविडेंस दर्ज नहीं की जाती, सिर्फ मुस्तर फैक्ट जो है वो तहरीर करते हैं। और इसमें फिर साथ में ये भी आ गया इसकी नीचे साइन होना और पार्ट उसका मुद्दई पे और वेरिफिकेशन तस्दीक। मैं तस्दीक करता हूँ कि ये जो लिखा गया ऊपर जुमनात जो है वो क्या है सही और दुरुस्त किया जाता है। इसी तरीके से फिर जब दूसरी पार्टी की तलबी होती है डिफेंडेंट तो वो अपनी तरफ से जो दाखिल करता है उसे रिटर्न स्टेटमेंट या जवाब दावा कहते हैं। जवाब दावा में उन्वान लिखने के बाद में वो इब्तदाई तौर पर उजरात लिखेंगे कि कौन कौन से फैक्ट एडमिटेड है या नहीं है, या उसका दावे को तस्लीम कर रहा है पहले उस पर अलग बात है। अदरवाइज उसके ग्राउंड्स लिखने होंगे कि असल हकायक ये हैं, वो अपना दिफा जो उनमें जो भी दे रहता है उसका वो इजहार करेगा और वो भी इसी तरीके से अपना जो है नीचे तस्दीक भी और ये तमाम चीज़ें होंगी। दावा जवाब दावा आने के बाद में फिर अदालत इशू करेगी और इशू जो भी गुजरात लिए गए हैं उनके मुताबिक जब इशू फ्रेम होंगे तो उसके साथ से फिर अदालत लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी मांग लेती है, वो ऑर्डर 16 वो, और गवाह जो है सबसे पहले स्टार्ट एविडेंस वो करेगा जिसने पहले गुजरात को देखते हुए इश्यूज को देखते हुए, अगर बहुत बात ऐसे होता है कि एडमिट किए होता है जवाब दावा लेकिन उसको जवाब दावे में लेकिन उसका पारे सबूत जो उन पर आता है तो फिर इस तरीके से शहादत के स्टार्ट वालों का मुताले भी कर देता है। अदरवाइज स्टार्ट की जिम्मेदारी
किसकी होगी? मुद्दई की। और मुद्दई के बाद में जवाब दावा देने वाले की मुद्दा लय की होगी। और इसके बाद में अगर कोई वो उसके रिबटल में कोई तरदीद कोई नई बात आ गई है, ऐसी तनकीद जो जिसका बारे सबूत मुद्दा लय पर था और वो उसने अपनी कोई शहादत दी है, तो उसके रिबटल में क्या करेगा? मुद्दई भी अपनी दोबारा शहादत दे सकता है। ये रोज़मर्रा की प्रैक्टिस इस अंदाज से। और फिर जब शहादत है वो थ्रू कमीशन भी लिखी जा सकती है। अदालत कह सकती है कि रीडर लिखे या कोई और, जिस पे दोनों वकला राज़ी हों, वो कमीशन के ज़रिए भी लिखी जा सकती है। और इसमें सवाल है कि हर केस में कमीशन होगा या कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं उसमें अदालत के नहीं, उसमें अदालत की अपनी उस पर है, वो अपने रीडर से भी लिखवा सकता है कि मेरा रीडर लिखे, लेकिन वहाँ पे लिखेगा कि डिक्टेटेड बाय मी। लिखना और उसके साइन करना ज़रूरी है। उसमें ये अमूमन प्रैक्टिस, हालांकि ये गलत है। अगर जज साहब खुद लिखे, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि जज साहब अगर खुद लिखे तो उससे फैसला लिखने में भी आसानी रहती है, और वो फैसला किसी हद नहीं बल्कि ज़्यादातर वो हक़ाइक़ पर मबनी होता है। उसमें सर ये भी होता है कि बिल्कुल सामने ठहरा बंदे उसकी फेशियल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बड़े अच्छे इस अंदाज में कि उससे वो गेन करता है कि ये गवाह सच कह रहा है, झूठ बोल रहा है। चेहरा बताता है इंसान का कि ये झूठा चेहरा है या ये सच्चा चेहरा है, क्या कैसा चेहरा है, ये उसे पता चल जाता है। इवन पहले तो मैं कहता हूँ कि मुद्दई की जो एक स्टेटमेंट पहले होती थी, अब तो नहीं रही, बहुत कम ली जाती है, कि वो इब्तदाई बयान जो है वो लिए जाते थे, और उसमें लेने के बाद में अदालत किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाती थी कि कौन सी पार्टी सच्ची है, कौन सी झूठी। और उसके बाद क्या भी होता था अदालत को, सिविल जज को, वो उसके मुताबिक फैसला। उसके बाद बस दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद में फिर अदालत फैसला देती है, और फैसला जो के मुताबिक फिर डिग्री बनती है। उस डिग्री के लिए फिर एक म्याद है। कोई पार्टी, एग्रीड पार्टी जो उससे नाखुश हो, वो अपील में जा सकती है, और अपील जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहली अपील। उसमें हायर जो फॉर्म होगा उसमें क्योंकि हो सकती है पहले डिस्ट्रिक्ट के पास ही फाइल में फिर वही हो जाएगी। हाँ, उसमें फिर वो ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जिसे हम कहते हैं, कि अगर वो 5 करोड़ की मालियत से ज़्यादा का दावा है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील चली जाएगी। अगर उसे 5 करोड़ की मालियत से कम कर तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास समाप्त हो। कुछ ऐसे भी है जो कानून में दिया गया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उसकी दफ़ा 54 में उसमें दर्ज किया गया कि वो डायरेक्ट अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज का अख्तियार समात उसमें नहीं रखा गया। तो ये जो है प्रोसेस, उसमें तहरीरी जवाब नहीं दिया जाता, उसमें सिर्फ आर्गूमेंट्स होते हैं। दोनों साइड के पार्टी या वो कला जो है वो अपने दलाइल देते हैं, उसके बाद वो कन्फर्म हो या दोबारा वो क्या कहते हैं जो रिजेक्ट हो फैसला, या रिमांड की बात हो जाते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस का मसला हो जाए, उसमें इस सूरत में वो आगे करें। इसके बाद फिर सेकंड गुंजाइश फिर हाई कोर्ट में कोई उसके अंदर कोई इलीगलिटी या इरेगुलरिटी पाई जाए तो फिर उसके खिलाफ निगरानी दायर हो सकती है। ये बहुत मुख्तर स्कोप होता है इसके अंदर। लेकिन आजकल मुझे कहना नहीं चाहिए कि हमारी हाई कोर्ट जो है वो थोड़ा सा वो भी चेहरे देख लेती है कि भाई अच्छा जी ये पक्की तौर पर रिलीज दे दो, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मेरा अपना तजर्बा है, कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, देखते हैं, वो सिर्फ वो चेहरे को देख के उन्होंने अच्छा जी चलो फिलहाल एडमिट नोटिस कर देते हैं, वो एडमिट नोटिस दूसरी पार्टी के खड़े पड़ जाते हैं। बहरहाल ये वकीलों का काम नहीं है कि वो अपनी कोर्स पर, आजकल तो बहुत सारे तबसरे और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट भी इस हद तक उस्ताद मोहतरम से मेरे शेख अशरफ साहब, उनका फिक्रा था कि लूज द केस बट डोंट लूज द कोर्ट।
और उन्होंने मुझे एक आदाब कि अपने जूनियर हो सीनियर हो सबके साथ अदब के साथ। मैं ज़रा लेट पहुंचा तो मेरे सीनियर के पास एक क्लाइंट उनके बैठे हुए थे, वो कुर्सी पे बैठे हुए थे और अच्छी मोटी पार्टी थी उन दिनों में, कोई क्लिनिक फैक्ट्री के ओनर वगैरह भी और वैसे भी बाकी बिजनेस के साथ थे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि उसने थोड़ा सा हिचकिचाहट सी बरती, तो फिर उन्होंने कहा कि सुना नहीं है तुमने? वकील साहब ठहर गए, खाली करो कुर्सी। यानी इस लिहाज से हमें थोड़ा सा अपना अदब जो है, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत, ये भी हमने सामने रखा। मेरा ख्याल है आज का सबक इतना काफ़ी है और बाकी वो इसके अंदर तो बहुत सी थोड़ी सोचने वाली चीज़ें थी, ये था को और जुरिस्डिक्शन और टाइप ऑफ केसेस और सिविल लिटिगेशन के बारे में, इसके बारे में रीजन और अपील के डिफरेंस है कि सर अगर है जी रीजन और अपील का डिफरेंस है इसमें निगरानी और अपील का वो कह रहे हैं। हाँ निगरानी किन सूरतों में अपील कर सकते हैं और किन सूरतों में रीजन जो है ना वो होता है। अपील के अंदर एक तो सेक्शन 96 हो गया, इताअत हो गया, और साथ में आर्डर 39 रूल आर्डर 43 रूल 1 जो वो आर्डर जो उसमें बयान कर दिए गए CPC में कि ये आर्डर जो है काबिल अपील होंगे और ये जो है इनमें रिवीजन हो, उसका रिवीजन का अलहदा जी, इसमें कुछ बाकायदा उन्होंने बताया कि कौन से आर्डर निगरानी से आर्डर कौन से आप अपील में जाएंगे और कौन से में जाएंगे। और असल बात ये है कि हमें टच रहना चाहिए कानून के साथ, जैसे भी कि आप ये डाइजेस्ट वगैरह मंगवाते हैं उनको एक नज़र से तायराना नज़र से हमें गुजरना चाहिए। बेशक हम बूढ़े हैं या जवान हैं, सबके लिए इल्म हासिल करना है। अल्लाह ताला हमें इस पेशे के साथ जुड़ा रहने और इसमें से इज़्ज़त हासिल करने की हमें तौफीक दे और इज़्ज़त देने की भी हमें तौफीक दे।